Den här sagan heter Duvan och myran. Djupt inne i skogen stod ett gammalt träd. Trädet var vackert och hade en tjock stam och många grenar. På en av grenarna fanns det ett fågelbo. I fågelboet bodde en duva. Nere på marken under trädet fanns det en myrstack. Där bodde en myra. Så myran och duvan var grannar. Båda levde lyckliga och var nöjda med sina liv. En dag satt duvan på grenen och njöt av den sköna vinden som nuddade hans vingar. Grenen gungade sakta upp och ner av vinden. Han satt där och tittade runt. Plötsligt fick han syn på myran som hade ramlat i vattnet. Myran var på väg att flyta bort med vattenströmmen. Hon kunde inte simma emot strömmen och komma upp på land. Hon ropade: "Hjälp, hjälp! Rädda mig! Jag flyter bort! Jag drunknar snart!" Duvan tänkte: "Jag måste hjälpa myran." Han drog bort ett blad från trädet, kastade ner det till myran i vattnet. Myran klättrade upp på bladet. Duvan lyfte bladet med sin näbb och lade den vid myrstacken. Myran blev jätteglad och tackade duvan för hjälpen och vänligheten. Dagarna gick. En dag när duvan satt på grenen kom en jägare förbi. Jägaren brukade jaga fåglar. Myran fanns på marken i närheten av jägaren. Jägaren fick syn på duvan som satt uppe på grenen. Han hade en pilbåge i handen. Han spände sin båge och skulle börja skjuta pilen mot duvan. Myran såg det och tänkte att nu kommer den stackars duvan att dö av jägarens pil. Myran skyndade sig mot jägaren och klättrade på hans ben och bet honom så hårt att jägaren ryckte till och missade att skjuta pilen rätt. Duvan märkte det och han flög därifrån. Myran blev glad och gick tillbaka till sin myrstack. Jägaren blev besviken att han missade sitt byte och gick därifrån. Efter en stund kom duvan tillbaka. Myran kom ut och berättade för honom vad som hade hänt. Duvan tackade myran för att den hade räddat hans liv. Slutsatsen är: riktiga vänner ställer upp för varandra i vått och torrt. Slut på sagan. नमस्ते। अभी आपने कहानी सुनी दूवान और मीरान की। दूवा यानी आपका होता है डव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और मीरान यानी चींटी एंड इंग्लिश में। तो इसके बारे में कहानी थी जहाँ वो दूवान जो होता है यानी जो डव जो होता है वो पेड़ पे बैठा होता है और वह चींटी को बहते हुए पानी से जाते हुए दिखता है और वो एक पत्ता डालता है ताकि वो उस पर चढ़ जाए और वो उसको बचा लेता है। फिर बाद में कभी ऐसा होता है कि वो जो दूवान है यानी अपना डव जो है उसे एक कोई पंछी पकड़ने वाला आता है और वह उसे पकड़ता है और फिर ये चींटी जो है उसको जाके काटती है और फिर उसे बचा लेती है। ठीक है, तो इस कहानी को आपने अभी सुना। आई होप कि आपने इस कहानी ये आपको समझी हो, आप अच्छे से सुनिए
और ये कहानी आपको आई एम श्योर बहुत आपको डेफिनेटली समझ जाएगी। फिर इसमें मैंने देखा कि कुछ आपको एडजेक्टिव के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ मैं, तो वही कॉन्सेप्ट मैं फिर से आपको इस वीडियो के द्वारा समझाऊंगी। तो एडजेक्टिव का बेसिक रूल जैसे हमें पता है कि अगर एन वर्ड है तो एडजेक्टिव का ओरिजिनल फॉर्म रहेगा। एथ वर्ड है अ, तो एडजेक्टिव में टी लगेगा, और अगर प्लूरल है तो एडजेक्टिव में ए लगेगा एंड में। तो ऐसे कुछ उदाहरण जो मुझे इस कहानी में मिले वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले ही लाइन में है "Djupt inne i skogen stod ett stort gammalt träd"। अब träd जो है वह एक एत वर्ड है, इसलिए स्तूर का हुआ स्तुर्ट और गम्माल का हुआ गम्माल्ट, टी लगा दोनों में, तो ये दोनों एडजेक्टिव है। वैक्केट, त्रैदित व वैक्केट यानी जो पेड़ था वह बहुत सुंदर था, तो सुंदर वैक्केट, तो टी लगा इसमें। फिर खादे एन शोक स्टैम, शोक यानी मोटी, अच्छी बड़ी मोटी जो थी, उसकी टहनी जो थी वो बड़ी मोटी थी। और मोंगा ग्रेनार, ग्रेनार यानी ब्रांचेस जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है så Miran och Dovan var grannar. Båda levde lyckliga och var nöjda med sina liv. båda यानी दोनों, चीटी और तूवान जो है वो दोनों जो है वह उन दोनों के बारे में है, इसलिए प्लूरल है, यानी तो इसलिए लिक का हुआ लिकलिगा और नॉइद का हुआ नॉइदा। फिर है होना विंदन। En dag satt Doan på gränden och njöt av den sköna vinden. और sköna यानी सुंदर है ना, ब्यूटीफुल। विंड की वो उसे वह एंजॉय कर रहा था, तो वो विंडन जो है, अब यह विंड का बेस्टैम्ड फॉर्म है। और बेस्टैम्ड फॉर्म, ये एक दूसरा रूल मैं आपको बता रही हूँ। बेस्टैम्ड फॉर्म में कभी भी जब एडजेक्टिव आता है तो वो फिर से प्लूरल जैसे ही उसमें ए लगेगा, तो इसलिए खोना का हुआ खोन का हुआ खोना। देन नेक्स्ट पेज पे कोई नहीं है एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट पेज में आया है Jägaren blev besviken att han missade sitt byte och gick därifrån। तो यहाँ पर यागaren यानी जो शिकारी जो था वह डिसअपॉइंट हो गया, बेस्वीकन, तो बेस्वीकन हुआ उसका। मिस्सादे, हाँ, अथान मिस्सादे। फिर जो एंड जो स्लुत्सात है इसमें, उसमें मुझे 3 एडजेक्टिव्स दिखे। रिक्तिगा वैनर, ställer upp för varandra i vått och torrt। अब रिक्तिगा, वैन यानी फ्रेंड, वैनर यानी बहुत सारे दोस्त, हाँ, फ्रेंड्स। तो रिक्तिग यानी रियल ना, असली दोस्त जो होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो रिक्तिगा वैन, रिक्तिक का हुआ रिक्तिगा। फिर व्हाट ऑफ थॉट, अब ये जो है यह एक कहावत है, व्हाट और थॉट यानी सूखे में और जाड़े में, जैसे हम बोलते हैं ना, सूखा और जाड़ा चलता ही रहता है जिंदगी में ना, तो वैसा ही है, तो व्हाट ऑफ थॉट। अब ये मैं सोच रही थी कि तो इसमें मैं सोच रही थी कि इसमें टी लगा है, वॉट यानी वेट, हाँ, उसमें डबल टी आया है, तो ये किसी डेफिनेटली किसी एत वर्ड के बारे में ये बात कर रहा है, ये स्लुत्सात्सन। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से एत वर्ड के बारे में होगा ये वॉट और त्रॉट। फिर मैंने सोचा कि हैंडल से है क्या, पर वो एन वर्ड है। फिर ओमस्टैंडिघिएतर है क्या, ओमस्टैंडिघिएतर यानी सर्कमस्टेंसेस, तो वो भी एन वर्ड है। फिर सिचुएशनर ऐसा बोलते हैं, सिचुएशंस इंग्लिश में, तो वो भी एन वर्ड है।
फिर मैंने ऐसे ही गूगल किया। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको जब कभी ऐसा सवाल आपके मन में आए कि ये एन वर्ड है, एत वर्ड है, तो आप सेम टेक्निक यूज़ करते हैं कि आप गूगल कीजिए और कुछ सेंटेंसेस ढूँढिए जहाँ पर वह उसके बारे में आपको कहीं न कोई एक शब्द मिल जाएगा। तो मैंने वॉत और तॉर्थ के बारे में सेंटेंसेस ढूँढे, क्या है गूगल पे। तो उसमें मुझे देखा कि ये बात कर रहा है प्रॉब्लम के बारे में, और प्रॉब्लम जो है वो एत वर्ड है ना? तो मुझे इतनी बड़ी बहुत खुशी हुई कि मुझे मिल गया आखिरी में, जो एत कौन से एत वर्ड के बारे में ये बात कर रहे हैं। सो व्हाट ऑक्टॉट प्रॉब्लेमेट। तो ये एत वर्ड है, इसलिए ये व्हाट का हुआ। इस व्हाट में टी लगा और तॉर्थ हुआ। तो यह कुछ ऐसे शब्द थे। हाँ, और मैंने कौन से नए शब्द मैंने सीखे इसमें, तो वो एक है कहाँ गया, हाँ, नुद्दादे। नुद्दादे यानी नुद्दादे हंस विंगार, यानी उसने यानी विंड ने, हवा ने उसके पंखों को टच किया है ना, उसके सहलाया बोलिए आप, जैसे उसको मूव किया है, तो उसको बोलते हैं नुद्दादे। हम्म फिर शब्द और कौन सा मिला मुझे यहाँ पर नया, उम, बस बाकी सब तो आते थे मुझे। तो तो यह था हमारा ये थी हमारी। मैं फिर से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका फीडबैक बहुत बहुत मायने रखता है, और वो मोटिवेट करता है मुझे ये सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मुझे अभी मैं इंडियन फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल में गई थी, तो वहाँ पर एक लेडी मुझे मिली। आई एम सॉरी, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बताया था। पर उन्होंने जो मुझे फीडबैक दिया कि आपने जो नई सीरीज़ शुरू की है उससे हमें मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, मैं काफ़ी नए शब्द सीख रही हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। तब मुझे फिर से ऐसा लगा कि ओ ओके फ़ाइन, किसी को तो इससे फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अभी तक मुझे, जब से मैंने ये कहानियों का सिलसिला, ये फार्मर्स और मुर्मुर सागुर के बारे का सीरीज़ हमने शुरू किया है, तो तब से उज्ज्वला ताई और मुझे, हमें कोई कमेंट्स नहीं मिले हैं। व्यूज़ है पर कमेंट्स नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और तो थोड़ा सा बीच में फिर से गैप आ गया 2-3 हफ्ते का, जब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया इस सागुर के बारे में। तो आपके कमेंट्स, एज़ आई सेड, कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो कृपया आपसे विनती है कि आप ज़रूर आप कमेंट्स डालिए, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे।